सुप्रिया थी ना, ये जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी कच्चे माल के एक्सपोर्ट से अमेरिका ने रोक हटा ली है। अमेरिका ने साझेदार देशों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें भारत को खास जगह दी गई है, जिन्हें वो वैक्सीन की सप्लाई करेगा। अमेरिका में मौजूद भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्लोबल एलोकेशन प्लान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत अमेरिका की तरफ से दुनिया के कई देशों को कोरोना टीकों की 25 मिलियन डोज की सप्लाई की जानी है। इसका एक बड़ा हिस्सा भारत को भी मिलने वाला है। तरनजीत सिंह संधू ने बताया कि अमेरिका के ग्लोबल एलोकेशन प्लान से भारत को लाभ होगा। बड़ी संख्या में वैक्सीन भारत को मिलने वाली है। टीकों का बंटवारा 2 श्रेणियों में किया जाएगा। पहला कोवैक्स पहल के जरिए और दूसरा सीधे पड़ोसी और सहयोगी देशों को। इसके साथ ही अमेरिका ने कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक भी हटा ली है। ये रोक हटाए जाने के बाद वैक्सीन निर्माताओं के लिए कच्चे माल की उपलब्धता आसान हो जाएगी। President Biden has announced today global allocation plan of 25 million vaccines. This is the first tranche out of total 80 million vaccines announced earlier by the United States. The distribution is under 2 categories. A, through COVAX initiative, and B, directly to neighbors and partner countries. Now, India will figure in both categories and will get vaccines as per allocation under COVAX and direct supply. So first would be the COVAX initiative, in which India is included in Asia. And second, through direct supply to neighbors and partner countries that include India, Korea, Canada, and Mexico. The US administration has stated that rest of tranches are expected soon. Today, the United States also announced removal of the Defense Production Act, which means no more priority supply will now be required, and this will further smoothen the supply chains for vaccine manufacturing, particularly for AstraZeneca and Novax. तरनजीत सिंह संधू ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैक्सीन आपूर्ति के आश्वासन के लिए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने अमेरिकी सरकार, उद्योग, कांग्रेस और प्रवासी भारतीयों के समर्थन और एकजुटता की भी सराहना की। Vice President Harris called Prime Minister Modi. It was a positive and warm conversation. You will recall that Vice President Kamala Harris was there during both the Quad and climate change summits. Prime Minister thanked Vice President Kamala Harris for the assurance of vaccine supply to India. Prime Minister also appreciated the support and solidarity from the US government, industry, Congress, and diaspora. They talked about the efforts to further strengthen India-US partnership in vaccines and other areas for global health and economic recovery. Also discussed were the Quad initiatives, including in healthcare. Prime Minister invited Kamala Harris to visit India soon after the normalization of global health situation. And I must point out here that this is in line with series of high-level engagements between India and the United States. There have been 3 phone calls by Prime Minister with President Biden and 2 summits, Quad and climate change, in the first 100 days of President Biden's administration. आपको बता दें, व्हाइट हाउस ने एक बयान में पूरा फ्रेमवर्क बताया है कि किस तरह से जून 2021 के अंत तक अमेरिका कम से कम 8 करोड़ वैक्सीन की डोज दुनिया भर में देगा। पहली 2.5 करोड़ डोज देने का भी प्लान बताया गया है। आपको बता दें, 2 करोड़ 50 लाख डोज में से करीब 1 करोड़ 90 लाख डोज कोवैक्स के जरिए साझा की जाएंगी। ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पेरू, बोलिविया और होंडुरस जैसे केंद्रीय और दक्षिण अमेरिकी देश और कैरिबियन कम्युनिटी देश समेत
डोमिनिकन रिपब्लिक को 60 लाख डोज मिलेंगी। वहीं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों को लगभग 70 लाख डोज आवंटित की जाएंगी। 50 लाख डोज अफ्रीकी देश को भेजी जाएंगी। बाकी 60 मिलियन डोज मैक्सिको, कनाडा, कोरिया, वेस्ट बैंक एंड गाजा, यूक्रेन, मिस्र, जॉर्डन और इराक जैसे देशों के लिए रखी गई है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें आरबीटी न्यूज से।